غازی آباد میں گھر میں گیس سلنڈر پھٹ گیا۔ حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ زخمیوں میں 17 سالہ مبین اور 12 سالہ عبداللہ اور 8 سالہ بچی شامل ہے۔ سلنڈر پھٹنے سے گھر کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ریسکیو سرائے کی جانب سے بتایا گیا تو زخمیوں میں 17 سالہ مبین، 12 سالہ عبداللہ اور 8 سالہ بچی شامل ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان ملک بتائے گا اس حادثے کے حوالے سے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں غازی آباد کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق گیس سلنڈر پھٹنے سے جو 2 گھر ہیں ان کی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3 زخمی جو ہیں ان کو ریسکیو 1122 کی مدد سے جو ہے وہ مقامی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 حکام کے مطابق زخمیوں میں 17 سالہ مبین ہے، 12 سالہ عبداللہ اور ایک 8 سالہ بچی ہے۔ ان کو جو ہے وہ مقامی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ واقعہ اب سے کچھ دیر پہلے پیش آیا، جس میں جو لیڈیز پارک گلی نمبر 10 ہے تاج پورہ اسکیم کا، یہاں پہ ایک گھر جو تھا جس کے اندر مبینہ طور کے اوپر ایک بلاسٹ کی آواز آئی، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہاں پہ جو اس بلاسٹ کے دوران جو سلنڈر پھٹا ہے اس کے دوران 3 بلڈنگ جو تھی ان کو نقصان پہنچا۔ 2 بلڈنگ جو ہیں وہ ان کی عمارتیں جو ہیں وہ ان کو زیادہ نقصان پہنچا، جبکہ تیسری جو بلڈنگ تھی اس میں قدرے نقصان کم ہے، لیکن ریسکیو حکام کی جانب سے اس وقت سرچ اینڈ ریسکیو کا عمل جاری ہے اور ملبے کے نیچے سے ابھی تک 3 زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے، اور ریسکیو حکام کے مطابق یہی 3 لوگ تھے جو اس ڈیبریز کے نیچے تھے، اور ان کو فوری طور پہ طبی امداد دینے کے بعد اب ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جہاں پہ ان میں سے ایک کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ 2 کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے کو جو ہے پولیس کی نفری بھی پہنچ چکی ہے، جبکہ ریسکیو 1122 کی جانب سے جو ڈیبریز ہیں ان کو ہٹانے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے، مقامی افراد سے بھی پوچھا گیا ہے جو گھر کے مالکان ہیں ان سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ابھی تک کسی کی بھی جو ڈیبریز کے نیچے ملبے کے نیچے ہونے کی اطلاعات موجود نہیں ہے۔ 3 لوگ تھے جن کو ریسکیو کر لیا گیا اور ان کو ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی، شہر میں ہیٹ ویو ہے اور ہیٹ ویو 28 مئی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت 41 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محسوس 43 ڈگری تک کیا جانے لگا ہے۔ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، محکمہ موسمیات نے یہ بتایا ہے، اور ہوائیں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ تو شہر میں ہیٹ ویو کی لہر جاری ہے۔ ہیٹ ویو کی لہر 28 مئی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں، موسم کا تفصیلی احوال ان سے جانیں گے۔ جی کومل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے پنجاب بھر میں ہیٹ ویو کا تو الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، لیکن آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لاہور میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ لاہور میں بھی ہیٹ کی شدید لہر جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں محدود رہیں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس سے کہ اس وقت بھی 41 ڈگری ہے، لیکن احساس جو ہے وہ 43 ڈگری کا ہو رہا ہے، جبکہ دن بھر 43 ڈگری رہے گا، جبکہ احساس جو ہے وہ 45 ڈگری کا ہوگا۔ ماہرین کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لاہور شہر میں آنے والے دنوں میں خاص طور پر جو ہے وہ 4 سے 7 ڈگری ٹیمپریچر بھی اضافے کے ساتھ ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہیٹ ویو کی یہ لہر جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بر وقت احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے برے طریقے سے متاثر کر سکتی ہے، اور اس سے جلد کی بیماریاں بھی کافی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اور آج خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ لاہوری کوشش کریں کہ گھروں میں محدود رہیں، کیونکہ ہوائیں جو 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں، یہ ہوائیں لو ثابت ہو رہی ہیں۔ لو کے تھپیڑے جب پڑتے ہیں تو اچھی خاصی گرمی کی شدت میں اضافہ جو ہے وہ محسوس کیا جاتا ہے اور مزید شدت بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین موسمیات نے بارشوں سے متعلق فی الوقت آج اور آئندہ 2 سے 3 روز کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے، لہٰذا 28 مئی کو بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ایک سسٹم داخل ہو رہا ہے شمال مغربی ہواؤں کا، جو کہ مختلف علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش کا سبب بنے گا، جو کہ لاہور میں بھی بہتری موسم میں بھی آئے گی اور ٹیمپریچر میں بھی آئے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جون کے پہلے ہفتے سے پری مانسون کے حوالے سے بھی امکانات جو ہے وہ ظاہر کیے گئے ہیں، اور پری مانسون کے بعد جو ہے وہ ٹیمپریچر میں جہاں پر کمی آئے گی، لیکن جو ہبس اور گھٹن ہے اس میں شدت آ سکتی ہے، ایسا بھی بتایا جا رہا ہے۔ فی الوقت جو ہیٹ ویو کی ایک خطرناک لہر ہے اس سے لاہوری جوجھ رہے ہیں، اور لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کریں کیونکہ احتیاط بے حد ضروری ہے، احتیاط علاج سے بھی بہتر ہے، اور ایک دم سے جب باہر سے گھروں کی جانب رخ کرے تو ٹھنڈے پانی کا ایک دم سے استعمال نہ کریں، ایسا بھی کہا جا رہا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑوں کا انتخاب
इंतखाब करें, सूती रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इंतखाब करें और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर रखें, ग्रीनरी को फ़रोग़ दें, ग्रीन बेल्ट्स को फ़रोग़ दें, अपने से का पौधा लगाएं, शजरकारी को फ़रोग़ दें, क्योंकि हमारे माशरे में या यूँ कहें कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर ज़्यादा गर्मी की एक बड़ी वजह ये भी है कि लाहौर शहर में ख़ास तौर पर जो दरख्त मौजूद हैं उसकी कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। इल्लीगल कटिंग की वजह से भी लाहौर की फ़िज़ा आलूदा हो रही है, क्योंकि ग्रीनरी जब होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि माहौल बेहतर। कोमल असलम तफसीली मौसम का अहवाल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को के ज़ेरे इंतज़ाम मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे तक जा पहुंचा है। बिजली चोरी की बुनियाद पर 7 कैटेगरीज में लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल किया गया है। शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को ने 20 से 30% लाइन लॉसेस पर 3 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी है। किन किन इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जानेंगे शाहिद सप्रा से। जी शाहिद सप्रा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे तक जा पहुंचा है। ज़रानी ने बताया है कि वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में लेस्को की जानिब से बिजली चोरी की शरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है और उससे मौजूदा जो गर्मी की जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है इसमें सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो कैटेगरीज बनाई गई हैं उसके मुताबिक वो 11 kV फीडर्स जहां पर 20 से 30% तक बिजली की लोड शेडिंग है वहां 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह 30 से 40% तक बिजली चोरी की शरह जहां रिकॉर्ड की गई है वहां 4 घंटे, 40 से 50% तक जो जहां जिन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है वहां इतनी बिजली चोरी 50% तक सामने आई है। इसी तरह 50 से 60% तक अगर बिजली चोरी की बात की जाए तो वहां 6 घंटे और 60 से 80% तक जहां बिजली चोरी की शरह रिकॉर्ड की गई है वहां 7 घंटे का शेड्यूल नाफिजुल अमल किया गया है। ये वाज़ेह कर दूं कि वफाकी हुकूमत ने बिजली चोरी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन भी लॉन्च की ताकि बिजली चोरों को पकड़ा जा सके, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे इलाके हैं जो जहां पर बिजली चोरी अभी भी हो रही है और लेस्को को मजबूरन वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में 3 से 7 घंटे की लोड शेडिंग करना पड़ रही है ताकि जो बिजली चोरी की वजह से नुकसानात कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ते हैं उससे बचा जा सके। तो शहर के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 4 से 5 घंटे और इवन 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन 7 घंटे जो है वो शहर के मज़ाफ़ात के इलाके हैं जहां कुछ फीडर्स हैं जहां बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। हालात ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं पंजाब हुकूमत ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 लॉन्च करने की भी तैयारी पकड़ ली है। 67 अरब लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेज 2 डिजाइन तैयार किया गया है। 30 जून से शुरू होने वाला फेज 2 आइंदा साल 30 जून को मुकम्मल होगा। इस फेज के हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 लॉन्च करने की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 67 करोड़ की लागत से जो है वो लाहौर डेवलपमेंट प्लान का फेज 2 डिजाइन कर दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज 2 जो है वो 30 जून से शुरू होगा, जो कि आइंदा साल 30 जून को मुकम्मल कर लिया जाएगा। फेज 2 में लाहौर की बकाया रह जाने वाली बागा इलामा इकबाल जोन, इसके साथ साथ अजीज पट्टी जोन में तरक्याती काम जो है वो करवाए जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है वो 8700 से जायद सीवरेज वाटर पाइपलाइन और गलियों की चीजें भी जो है वो फेज 2 का हिस्सा होंगी। जी बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का ये मामला है। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश 23 मई तक है। ताहाल बंदिश में इजाफे के लिए कोई नया नोटम जारी नहीं किया गया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, भारतीय प्रवासों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश को जो एक माह मुकम्मल होने वाला है और मज़ीद बंदिश का फैसला है वो अब कल किया जाएगा। और ज़राए का ये कहना है कि फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को जो अब तक 8 अरब रुपए का नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा है और बोइंग 777 और एयरबस तैयारों की जो 150 परवाजों को योमिया 2 से 4 घंटे की इजाफी सफर का सामना है वो भी करना पड़ रहा है। क्योंकि भारतीय एयरलाइंस को एक माह में ईंधन कीमत में 5 अरब रुपए के इजाफी खर्चात है वो बर्दाश्त करने पड़े हैं और तवील दुरानी की जो भारतीय परवाजों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अलग अखराजात का सामना है वो करना पड़ा है। इनमें सबसे ज्यादा मुतासर है वो भारतीय हुकूमत की अपनी जो एयर है एयर इंडिया वो मुतासर हुई है। अब ज़राए का ये कहना है कि 23 अप्रैल से 23 मई तक भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का फैसला किया गया था। अब तर्जुमान एविएशन के मुताबिक ताहाल बंदिश में इजाफे के लिए कोई नया नोटिस है वो जारी नहीं किया गया और इसका फैसला जो है ये हुकूमत की तरफ से होने वाले हदायत के ऊपर
पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो करेगी। और जायका ये भी कहना है कि हुकूमत ने मजीद तोसी की मंजूरी दी तो भारतीय तैयारों के लिए फजाई हदूद बंदिश में तफसील नया नोटिस है वो जारी किया जाएगा। जी सईद अहमद सही तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली के बिल और दफातर के किरायों से जान छुड़वाने का मंसूबा है। लाहौर में 2 बड़े दफातर में सोलर सिस्टम की तनसीब की जाएगी। एक्साइज हुकाम का ऐसा बताना है। मजीद क्या कहा गया एक्साइज हुकाम की जानिब से, जानेंगे अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से बिजली के बिलों से जान छुड़वाने के लिए और बिल्डिंग्स की किरायों की मद में जो फ़ंड्स अदा किए जाते हैं हर साल, उनसे बचने के लिए महकमा एक्साइज की जानब से नई स्कीमें जो हैं वो हुकूमत को भिजवाई गई हैं। लाहौर के 2 दफातर जो DG एक्साइज ऑफिस और फरीदकोट हाउस जहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है, वहाँ पर प्रॉपर्टी का भी ऑफिस है और मोटर ब्रांचेस भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो इब्तदाई तौर पर इन दोनों दफातर पर सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए हुकूमत को इस्तदा की गई है। और इसके साथ साथ 3 रीजनल ऑफिस नए बनाने के लिए, जिसमें 2 लाहौर के हैं, रीजन B और रीजन D, जबकि रीजन गुजरात और 4 दीगर अजला के जो नए दफातर बनाने के लिए DG एक्साइज की जानब से समरी भिजवाई गई है। DG एक्साइज उमर शेर सेठा का कहना था कि बिजली के बिलों की मद में बड़े पैमाने पर हर साल फ़ंड अदा करना पड़ते हैं। इसी तरह जो किराए की बिल्डिंग्स हैं उनकी मद में भी करोड़ों रुपए सालाना जो है वो अदा करना पड़ते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को ये दोनों नई स्कीमें भिजवाई गई हैं। इसके लिए बाकायदा तमाम फिजिबिलिटी भी तैयार करके भिजवा दी गई है, समरी भी भिजवा दी गई है। अली साही, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद के वकील को तैयारी करने के लिए 18 जून तक की मोहलत दी गई है। समाअत का तफसीली अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद पेश हुए हैं। इसी वाले से हम बात करते हैं कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद से। कर्नल साहब, आज केस की समाअत क्या होगी? देखें, आपको पता है जो मेरे पहले वकील साहब थे अवैस खालिद साहब, वो मोहतरम जज बन गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के। और मेरे जो नए वकील हैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब, उन्होंने आज हमारी 2 दिन मीटिंग हुई तो उसमें ये हमने तय किया कि इसको और मज़ीद तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें 2019 का भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट है पंजाब का, 2022 भी है जिसको हमने चैलेंज किया हुआ है। भाई जो 2025 का बिल है वो भी काबीना की अपना असेंबली की कमेटी में पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये काफ़ी डिटेल्ड तैयारी मांग रही थी। तो डॉक्टर साहब ने कोर्ट से मेरे थ्रू रिक्वेस्ट की और मैंने भी ये मुनासिब समझा कि उनको और टाइम मिल जाए। मेरी इस्तदा है वो है एक गलत लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, और जो पूरे पंजाब की आवाम है उनके जो बलदियाती नुमाइंदगान है उनको वजूद में लाने की ये काविश है, क्योंकि उसके बगैर मैं ये समझता हूँ ना सूबा तरक्की करेगा और ना जितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ये पाया तकमील तक आवाम की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक पूरे होंगे। सब ये चाहते हैं कि बलदियाती इलेक्शन जल्द अज जल्द हों, और मेरी यही इस्तदा है। पार्टी में भी जब कभी बात होती है तो वो यही कहते हैं हम जल्द कराएंगे। अब चूँकि ये मेरी पिटीशन हुकूमत बनने से पहले की है, PMLN की हुकूमत से पहले की है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कानूनी नुक्ता नज़र से भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, ताकि पंजाब के अवाम को ये हक़ मिल जाए कि वो अपने बलदियाती जो नुमाइंदगान हैं उनका इंतखाब करें और हमारा सूबा जो तरक्की की तरफ और तेज़ी से गामज़न हो। नॉर्थ जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो किस तरीके से पूरे लाहौर को सुपरवाइज करेंगे, उनके पास कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है कि वो हर एक गली में आप सूबे की सबसे बड़ी अदालत में आए हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है। जी इसी उम्मीद के ऊपर मैं लगा हूँ और इंशाल्लाह ताला हमें हमारा हक मिलेगा। पहले ये जो नुमाइंदे होते थे बलदियाती नुमाइंदे, उनके साथ एक जर्मन में आया करते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में अपडेट कर रहे थे।